کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ آج بھی مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میری والدہ گاؤں کی رہنے والی تھی اور لاہور شہر میں آئے اور میری پیدائش لاہور میں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہی ہم دوسری تیسری کلاس میں پڑھتے تھے، 3 ماہ کی چھٹیاں جس طرح اب بھی بچوں کو منڈے سے سٹارٹ ہو گئی ہیں، اسی طرح چھٹیاں ہوتی تو میری والدہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ہاں لے جاتی، یعنی ہمیں ہمارے نانکوں کے پاس لے جاتی۔ جب ہم بابو صابو سے بیٹھتے، بھائی پھرو کے قریب ایک گاؤں ہے، تو وہاں پر میرے نانا جی اور نانی جی رہتے تھے، ماموں وغیرہ بھی۔ ہوا یہ کہ جب ہم جاتے تھے اس وقت، آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہوگی، یہ چلتی تھی بڑی بسیں، ان کی کئیوں کی کھڑکیاں بھی نہیں ہوتی تھی، ہوا تیزی سے باہر سے پڑتی تھی اور لوگ کچھ چیزیں بیچنے والے، ٹافیاں، دال، اور میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے ایک شخص نے تھیلا پہنا ہوتا تھا اور وہ آواز گاڑی میں لگاتا تھا، 12 مسالوں سے بنی ہوئی مرغ چنے کی دال، اس طرح وہ آواز لگاتا، اس کے بعد کیا کرتا، اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالتا اور ایک چھوٹی سی اس کے پاس چیز ہوتی اس سے نکالتا اور ہر ایک یہ نا وہ آگے ہاتھ کرتے اور ہاتھ پر تلی پر تھوڑی تھوڑی نا وہ دال رکھ دیتا، ساری ایسے کرتے۔ میں بھی چھوٹا سا، میں نے بھی کر دیا، تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ یہ فری میں دے رہا ہے۔ وہ اصل میں بتانا یہ چاہتا تھا، وہ ٹیسٹ کرواتا تھا کہ اسے چکھو، پسند آئے تو لے لینا، اگر پسند نہ آئے تو نہ لینا۔ تو واقعی یہ جب کوئی نیا بندہ بیٹھتا تو وہ چکھ لیتا تو منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا، وہ تقریباً سارے لوگ ہی نکالتے پاکٹ میں پیسے، وہ لیتے، ٹیسٹ اچھا تھا نا۔ تو اسی طرح اگر کوئی خداوند کا ٹیسٹ کرتا ہے، خداوند کو چکھ لیتا ہے اور وہ دائیں بھی نہیں مڑتا اور بائیں بھی نہیں مڑتا، وہ سیدھا نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے۔ تو اچھا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کے علاقے میں کوئی بیمار ہونا تو بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، MBBS، تو جو ڈاکٹر آپ جس کے پاس جاتے ہو، چاہے وہ کمپاؤنڈر ہی، آپ نے اس بندے کو یا اپنے رشتہ دار کو ریفرنس اس کا دینا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ہے، 2 دن دوائی لیں تو ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہم نے اس کا ہی ٹیسٹ کیا۔ ہمیں کیا پتا MBBS کیا ہوتا ہے، چاہے وہ زیادہ جماعتیں پڑھا ہو، زیادہ اس کی سٹڈی ہو، زیادہ اس کا پریکٹیکل ہو، بہت اچھی دوائی دیتا ہو، لیکن ہمیں کون سا ڈاکٹر اچھا لگتا ہے؟ وہی جو ہمارے گھر کے قریب ہے، کیونکہ ہم نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے۔ اسی طرح جس چیز کا انسان ٹیسٹ کرتا ہے، چکھتا ہے، اس کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ اور داؤد بھی یہاں پر کہتا ہے، زبور نویس کہتا ہے کہ تم خداوند کو آزما کر دیکھو، یعنی چکھ کر دیکھو، اس کا ٹیسٹ تو کر کے دیکھو کہ وہ کیسا مہربان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سامری عورت کو، کہ سامری عورت جب مسیح سے دور تھی تو اس وقت وہ گناہ کے اندر مبتلا تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آیا، اور سامری عورت اس وقت آتی تھی جب خاندانی عورت کوئی بھی نہیں آتی تھی۔ اس نے اپنا ٹائم رکھا ہوا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ بدکار تھی، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا اور وہ لوگوں سے ڈرتی تھی، خوف زدہ ہوتی تھی۔ اور یاد رکھیے، کیونکہ میں ننگا ہوں،
हालांकि वो पहले नहीं डरता था। जब गुनाह जिंदगी में आता है तो खौफ और डर जिंदगी में आ जाते हैं। इसी तरह सामरी औरत की जिंदगी में गुनाह था, इसलिए वो डरती थी और उस वक्त पानी भरने के लिए आती थी जब खानदानी औरतें नहीं आती थी। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह भी उस कुएं पर आ गया और थका मांदा सामरी औरत से कहता है, मुझे क्या पिला? पानी पिला। अब सामरी और यहूदियों का आपस में कोई लेन देन नहीं था। आपको पता क्यों नहीं था? हालांकि जो सामरी थे वो भी यहूदी थे। सामरिया का सूबा भी यहूदी था। फलस्तीन के उस वक्त 6 सूबे थे और सामरिया का सूबा भी वो भी यहूदी थे और यहूदिया का सूबा भी यहूदी कहलाते थे। असल वजह यह थी सामरी और आपस में इनकी नफरत क्यों थी। असूर का बादशाह, जिस तरह आज सुपर पावर अमेरिका है ना, इसी तरह उस दौर में असूरी हुकूमत थी। असूर का बादशाह सुपर पावर थी और सामरिया में बड़े टैलेंटेड लोग थे, फकीर, दानिशमंद, अक्लमंद, उलमा, बहुत जबरदस्त लोग थे। और असूर का बादशाह वहां से अपनी मर्जी से लोगों को उठाता है जो पढ़े लिखे और दानिशमंद उलमा थे, उनको अपने पास ले जाता और वहां पर दूसरे इलाकों मुल्कों में से लोगों को छोड़ देता। कौन से? जो बुत परस्त, जनाकार, जादूगर, इस तरह के लोग उस सामरिया के सूबे में छोड़ देता और वहां से अच्छे अच्छे लोगों को उठाकर अपने पास ले जाता ताकि और ज्यादा असूरी हुकूमत स्टैब्लिश हो सके। इस सबब से जो यहूदिया के रहने वाले थे वो सामरियों से नफरत करते थे कि अब ये असल सामरी नहीं रह गए, अब ये मिली जुली भेड़ हैं, इनके अंदर बुत परस्ती आ गई है, जनाकारी आ गई है। इसलिए यहूदिया के सूबे वालों ने सामरिया के सूबे वालों से नफरत करना शुरू कर दी और अपनी बेटियां बेटे पहले एक दूसरे को देते थे, उसके बाद इन्होंने कट ऑफ कर दिया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसे सामरी दिया। तो याद रखिए, जब मसीह ने बोले, मैंने बताए क्या मैंने कहा, शाबाश, पीछे से मैंने बताई क्या मैंने कहा, शाबाश। जब यीशु ने कलाम किया और वो कलाम उसकी सामरी औरत की रूह तक उतर गया और उसे पता चल गया कि ये खुदावंद वही है जिसकी बाबत पुराना अहदनामा अंबिया कराम फरमाते थे कि क्रिस्तुस मसा किया हुआ इस दुनिया में आने वाला है। और उसे पता चल गया, उसने टेस्ट कर लिया, उसने मसीह को चख लिया और उसके पास बाद भागी दौड़ी चली जाती है और बाइबल कहती है और उसने फिर 10 शहरों में मुनादी करना शुरू कर दी कि मुझे मसा किया हुआ यीशु मसीह नासरी मिल गया है, जिसकी बाबत अंबिया कराम और जिसकी बाबत पुराना अहदनामा बताता था। उसने कहा मुझे क्रिस्तुस मिल गया, यानी मसा किया हुआ। पहले वो खुदावंद यीशु से कोसों दूर थी, जब उसने उसका टेस्ट कर लिया, उसको चख लिया कि यही मेहरबान खुदावंद है, उसके बाद वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ी, वो आगे की शान की तरफ दौड़ी चली जाती। इस तरह याद रखिए, आज भी कोई शख्स खुदावंद का टेस्ट कर लेता है, मैं समझता हूँ हालात जैसे भी क्यों ना हो, वो कभी भी मिस्र की तरफ नहीं भागता, मिस्र की तरफ नहीं लौटता। इससे मुराद पुरानी जिंदगी में कभी नहीं जाता। जिसने हकीकी तौर पर खुदावंद का टेस्ट कर लिया होता है, हकीकी तौर पर खुदावंद को चख लिया होता है। पौलुस के बारे में आप जानते हैं,
पलूस शरीयत का आलम है। वो कहता है मैंने गमलीएल के कदमों में बैठकर क्या पाई है? तालीम। क्या पाई है? वो कहता है मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैंने तो बड़े अलूम हासिल किए हैं, लेकिन यस्सु का टेस्ट उसने कोई नहीं किया। यस्सु के लोगों को वो मारता पीटता, और एक वक्त आया कि यस्सु के लोगों को मारने के लिए, कलीसिया के लिए वो बादशाह से परवाने लेता और जाता है दमिश्क की राह पर लोगों को सताने के लिए, मारने पीटने के लिए। जब बाइबल कहती है कि दमिश्क की राह पर जा रहा था, तो वहां पर आसमान से खुदावंद यीशु मसीह का नूर चमका और पलूस और उसके साथी गिर गए, और यीशु मसीह ने उसकी आंखों को बंद कर दिया। क्या कर दिया? आंखों को बंद कर दिया। और वो कहता है खुदावंद चाहे जितना भी कोई ताकतवर क्यों ना हो, जिसकी आंखें ही बंद कर दी जाएं, तब उसका हाल उससे पूछे क्या होगा। आंखें बंद, वो खौफजदा हो गया, चलाने लगा, पुकारने लगा, क्या खुदावंद तू कौन है? उसने यीशु ने आवाज दी कि मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता और दुख देता है। कलीसिया को जो सताता और दुख देता है, कलीसिया के कोई खिलाफ उठता है, कलाम में लिखा है उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे समुंदर की तह में डाल। और पलूस भी कलीसिया के खिलाफ उठा था, बगावत कर रहा था, मारने के लिए जा रहा था, और यीशु ने उसकी आंखें बंद कर दी और यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता और दुख देता है। जो कलीसिया को सताता है वो यीशु को सताता है। यीशु ने उसकी आंखें बंद कर दी और उसे उठाकर हननिया के घर में ले गए और यहूदा के घर में ले गए। और वहां पर एक नबी था उस इलाके में जिसका नाम हननिया था, और खुदावंद ने हननिया पर रोया में जाहिर होकर कहा कि पलूस यहूदा के घर में पड़ा है। उस वक्त साउल कहते थे। तो हननिया डर गया, वो कहता मैं तो नहीं जाऊंगा। खुदावंद ने कहा क्यों? वो कहता तेरे लोगों को मारता है, कत्ल करता है, मैं नहीं जा सकता। खुदावंद यीशु ने फिर बताया कि मैंने उसकी आंखों को बंद कर दिया है, तू जाएगा और तू वेलकम तुझे करेगा। वो डरता डरता जाता है उसके पास, आवाज देता है साउल, तू आंखें बंद है। कहता खुदा ने उसको भी बता दिया था, पालूस को जो साउल था। और जब उसने दुआ की और साउल की आंखें खुल गई, और उसके बाद खुदा ने उसे कहा तू साउल नहीं बल्कि तू पालूस की तरह खिदमत करेगा। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब उसने खुदावन को चखा नहीं था, उसका टेस्ट नहीं किया था, तो समझ लीजिए इल्म बहुत था उसके पास, इल्म बहुत था उसके पास, लेकिन खुदावन का टेस्ट नहीं किया था। दमिश्क की राह पर उसने यीशु का टेस्ट किया, यीशु को चखा, और उसके बाद याद रखिए वो पीछे मुड़कर उसने कभी नहीं देखा। सारे शहर के मुल्क के लोग उसके खिलाफ उठे और वो एक ही रास्ता, वो निशान की तरफ दौड़ा चला जाता था, क्योंकि उसने मसीह को चख लिया था, मसीह का टेस्ट कर लिया था। तो याद रखिए आज भी हकीकी तौर पर अगर सम टाइम लोग चर्च में आते हैं, वो टेस्ट नहीं उन्होंने किया होता, वो 2 दिन होते हैं। अगर किसी ने कोई और बात की, नुकसान हो गया, उनको छोड़कर वो दूसरी रात चल देते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने टेस्ट किया ही नहीं मसीह का। जिन्होंने टेस्ट किया मसीह का, वो कहते हैं जान जाए तो चली जाए, लेकिन यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकते। तो याद रखिए, एक मैं पढ़ रहा था रसाला, और उसमें एक बुजुर्ग था। अमेरिका के अंदर एक सेमिनार हुआ, रोला वहां पर ये था, प्रॉब्लम मुश्किल ये थी, लोग यीशु को खुदा का बेटा कहते थे। क्या कहते थे? आज भी बड़ी प्रॉब्लम है।
कई लोग आपको कहते हैं अब क्यों कहते हो, तो उस वक्त तो सख्त प्रॉब्लम था कि यीशु को खुदा का बेटा तुम क्यों कहते हो। लोग यीशु को कबूल करना शुरू हो गए। एक बड़ा सेमिनार रखा गया, एक प्रोफेसर ने बड़ी किताबें रखकर सेमिनार पर टीचिंग देता रहा। ये साबित करने की कोशिश की कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है। फिर मौका देते हैं कि सवाल करो। एक बुजुर्ग था, नीचे बैठा, बहुत बड़ा चेयर लगी थी, वो जल्दी से उठा। उसके पास एक छोटा सा बैग था, बैग में से उसने एक सेब निकाला। क्या निकाल लिया? तो खड़ा हो गया दरमियान में। जब खड़ा तो उसके पास माइक जाता है, माइक पकड़ता तो वो सेब खाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा था, राम राम से खाना शुरू किया। अब सारे लोग परेशान है, पूछा क्या ना की चाहता है। दूसरे ने पूछा किसी का सवाल हो तो पूछे। वो तो साबित ये कर रहा प्रोफेसर कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है। बूढ़े आदमी ने जब सेब खा लिया, मुकम्मल कर लिया, उसने माइक में कहा आहिस्ता आहिस्ता बोलकर प्रोफेसर से कि जो मैंने सेब खाया है मुझे बता कि इसका टेस्ट कैसा है। वो मुस्कुरा कर कहता है बाबा जी सेब तू खादा, तेनू बता दो सेब कैसा है। वो कहता है इसीलिए मैं तुझे बताना चाहता हूँ, तू यीशु के बारे में कह रहा है, तूने यीशु का टेस्ट ही नहीं किया, मैंने टेस्ट किया है, वो हकीकत में खुदा का बेटा है। तूने दूसरी सारी किताबें पढ़ी है, सारे मजहबों का टेस्ट किया है, लेकिन तूने यीशु का आज तक टेस्ट नहीं किया। यीशु को तूने आज तक नहीं चखा, इसलिए तुझे क्या पता यीशु की कुदरत का। मुझे पूछ कि यीशु हकीकत में खुदा का बेटा। इसलिए अगर कोई हकीकी तौर पर यीशु को कबूल करता है, उसने हकीकी टेस्ट किया होता है। बाज लोग रस्मी तौर पर कबूल करते हैं, दोनों बेड़ियों में पांव रखते हैं, खुदा के साथ भी और दूसरी साइड पे। टेस्ट ठीक नहीं किया होता। जिन्होंने हकीकी टेस्ट कर लिया होता है वो कभी भी यीशु का इनकार नहीं करते। वो जान चली जाए, पलूस क्यों कहता था? वो कहता ना काल, ना उजाड़ा, ना नंगापन, ना सर्दी, ना ये वाली गर्मी, क्या ना सर्दी ना ये वाली गर्मी जिसमें लोग कहते बड़ी गर्मी। वो आखिर में कहता है गर्मी सर्दी से छाड़ दो, और कहता है यहाँ तक के मौत भी मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने यीशु का टेस्ट किया, उसको चखा हुआ है। तो आज अगर कोई हकीकी तौर पर यीशु का टेस्ट कर लेता है वो पीछे मुड़कर नहीं होता। याद रखिए, एक आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, नीचे में बैठा सोच रहा था कि ये चर्च की जगह है, पादरी साहब ने चर्च के लिए डोनेट की है, ऐसा ही है। हम अपना घर बनाने के लिए, हम अपना घर बनाने के लिए पैसे उठाकर भी सब कुछ कर सकते हैं। आई समझ? अगर ये खुदा का घर है तो ये खुदा का घर ही रहेगा। याद रखिए, ये आपके लिए इबादत की जगह है, आपके लिए मसीह की परस्तिश की जगह है। तो अगर सारे मिलकर इसे कंप्लीट करें तो समझिए 2 माह में कंप्लीट हो जाए। ऐसा ही है, बस हमें अपने दिल को खोलने की जरूरत है। कलाम में लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर कोई मुश्किल पड़ती है ना, माजरत से घर का कुछ शख्स बीमार हो जाए तो 10-20 हज़ार लगाना पड़े तो असी चौक के भी लगा देंगे, ऐसा है या नहीं? लेकिन जब चर्च के लिए कहा जाएगा इतना दिल किसी का भी नहीं खुलेगा, जैसे की करिए, परेशान हो जाए ले आइए, ले आवांगे कितों। जब खुदावंद के लिए, याद रखिए, कोई अपना दिल खोलता है तो खुदावंद उसे बरकत